تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ۔ وہ اللہ نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی نے کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا۔ لہذا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ساتھ اور اس کے فضل سے حکمت و دانائی اور قوت گویائی کے ساتھ تائید و نصرت کی گئی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق جاننے کے بعد انہیں سر انجام دینے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے احکامات بجا لا کر اور منع کردہ اشیاء کو حقارت سے ٹھکرا کر اپنے نفس کو پاک کرو، کیونکہ تقوی ہی اللہ کی رضامندی اور جنت کا ضامن ہے اور غضب الہی بگاڑ اور سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، جنت کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف دوڑو اور سیدھی راہ پر چلو، جو دنیاوی مصلحتوں کو منظم کرتی ہے اور جو اپنے راہی کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام عطا کرتی ہے۔ اے لوگو، اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ، اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی آواز کے لیے اپنے دلوں کو کھول لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں، یہ جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی سب سے پہلی سورت کی عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے احسان اور رحمت ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا تعاون اور مدد ہے تاکہ وہ دنیا میں انسانی کمال تک پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن پسندیدہ سنتوں کی جانب اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے، ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان بندگی کے مراتب میں اس مقام تک پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر ہے، اور انسان اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ اور عبادت تمام نیک اعمال پر مشتمل ہے، انسان کو ناپاک چیزوں، برائیوں اور ہلاکتوں سے بچاتی ہے، اور یہ آخرت میں جنت کی نعمتوں کی ضامن بھی ہے۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب اور ہلاکت سے نجات کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت ہی صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، لہذا تم سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا ہے اور جن محرمات سے منع کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بعض حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے، کبھی فراموش نہ کیا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لایا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے، اور اس سے اپنی جان، مال اور اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کی جائے، اور ہر چیز کی محبت پر اس کی محبت کو فوقیت دی جائے، اور بندہ اس کے سامنے مکمل طریقے سے سر نگوں اور جھکا رہے اور ہدایت پانے پر بہت زیادہ خوش ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام طرح کی عبادات کا مستحق ہے، کیونکہ
क्योंकि उसकी ज़ात तमाम तरह की सिफात जलाल और औसाफ कमाल और अज़मत व किबरियाई, रहमत और हर चीज पर कुदरत से मुत्तसिफ है, और इसलिए कि वो मखलूक़ात पर ज़ाहिरी व बातिनी बेशुमार नेमतें नाजिल करता है, और इसलिए कि वो प्यारे प्यारे नामों और बुलंदो बाला औसाफ से मुत्तसिफ है। इससे भी अजीम नेमत और बड़ा फजल व एहसान यह है कि अल्लाह ने हमारे लिए और तमाम लोगों के लिए उन इबादतों की वजाहत फरमा दी है जिनसे वो राजी होता है, और उन बुराइयों से आगाह कर दिया है जो उसकी नाराजगी और अज़ियत का बाइस है, ताकि एक मुसलमान अल्लाह का मुखलिस बंदा बन जाए, उसकी वजह से ताकतवर बन जाए और उसी के दरवाजे पर डेरा जमा ले, ताकि वो उसे खैरात व बरकत से नवाजता रहे और हर तरह के शर व फितना और हलाकत व तबाही से उसकी हिफाजत करे, क्योंकि अल्लाह ताला इबादत की वजह से ही इंसान के मकाम मर्तबा को बुलंद करता है। इरशाद बारी ताला है, जो शख्स इज्जत चाहता हो सो इज्जत सब अल्लाह ही के लिए है, उसी की तरफ हर चीज, उसी की तरफ हर पाकीज़ा बात चढ़ती है और नेक अमल उसे बुलंद करता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, और ना कमजोर बनो और ना गम करो और तुम ही गालिब हो अगर तुम मोमिन हो। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, हालांकि इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस्लाम की वजह से हमें गलबा अता किया है, बस अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते से गलबा ढूंढेंगे तो अल्लाह हमें ज़लील और रुस्वा करेगा। इसलिए इस कायनात में सबसे ताकतवर इंसान एक मुवाहिद बंदा ही होता है और सबसे कमजोर इंसान अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करने वाला होता है। इरशाद बारी ताला है, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, मकड़ी की मिसाल जैसी है जिसने एक घर बनाया, हालांकि बेशक सब घरों से कमजोर तो मकड़ी का घर है, अगर वो जानते होते। वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत व बंदगी से भी ज्यादा अजीम हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा लातादाद बेशुमार माबूदान बातिला और झूठी खुदाओं की गुलामी और बंदगी से आफियत पाता है, बुतों और मूर्तियों की इबादत और जलालत व गुमराही और हवा परस्ती से नजात पाता है। इरशाद बारी ताला है, क्या तुमने उस आदमी को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है, तो क्या तुम उस पर निगहबान हो। इंसान को कुफ्र के दायरे में ले जाने वाले शुबहात जैसे उमूर इंसान को शिर्क में डाल देते हैं। इबादत की कई किस्में हैं, जैसे दिलों की इबादत, आज़ा व जवारिह की इबादत, उनमें दिलों की इबादत ज्यादा अफजल और आला है, जैसे दुआ, इखलास, ईमान, यकीन, डर व खौफ, एहसान, भरोसा, रुजू इल्लाह, महब्बत, रग़बत, खौफ व डर, उम्मीद, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना या बुग़्ज़ रखना, परहेजगारी व वरा। उसके अलावा दिलों के बहुत सारे अमाल हैं। इमाम इब्न जरीर फ़बरी और इब्न कसीर ने अपनी तफसीरों के अंदर और इमाम इब्न क़य्यिम ने मदारिजुस सालिकीन के अंदर इन कलिमात और मतालिब की ऐसी शानदार और दिलनशी तशरीह की है कि उससे मजीद की गुंजाइश नहीं है, गोया वो खालिस शहद हो। सहाबा किराम की जमात दिलों के अमाल के एहतमाम और उनके मरातिब की तकमील की वजह से उम्मत के दीगर लोगों पर फौकियत ले गई, क्योंकि यही जवारिह के अमाल असास हैं और जवारिह के अमाल में से इस्लाम के 5 अरकान हैं। उनके अलावा जो अमाल हैं ये उन्हीं के ताबे हैं। क्या आपको मालूम है कि इस कायनात और इसके अंदर जो कुछ है उनकी तख्लीक का मकसद और गर्ज व गायत महज अल्लाह की इबादत क्यों है? क्योंकि उसके बगैर दुनिया के निजाम दुरुस्त नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर हक उनकी ख्वाहिश के पीछे चले तो यकीनन सब आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है बिगड़ जाएं। और क्योंकि अल्लाह की इबादत की अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करती है और अल्लाह ताला से हमें जोड़ती है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक की हिफाजत करती है, यही वालिदैन के हुकूक, हाकिम के हुकूक, क़राबतदारों के हुकूक, बंदों के एक दूसरे पर हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ अता करती है, और उसके बदले में अल्लाह ताला हमें अज्र व सवाब से नवाजता है। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज न तुम पर कोई खौफ है और न तुम गमगीन हो गए। वो लोग जो हमारी आयत पर ईमान लाए और वो फरमाबरदार थे, जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम और तुम्हारी बीबियां, तुम खुश किए जाओगे, उनके गिर्द सोने के थाल और प्याले लेकर फिरा जाएगा, और इसमें वो चीज होगी जिसकी दिल ख्वाहिश करेंगे और आंखें लज्जत पाएंगी, और तुम उसमें हमेशा रहने वाले हो। और ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, उसकी वजह से जो तुम अमल करते थे। तुम्हारे लिए इसमें बहुत से मेवे हैं जिनसे तुम खाते हो। और अल्लाह की इबादत सर अंजाम देने में लोगों के एक दूसरे से बढ़कर मुख्तलिफ दर्जे हैं। लोगों में से सबसे आला दर्जे पर फायज वो शख्स है जो अमल करते वक्त रिज़ा इलाही और उसके सवाब दोनों को ही मद्देनजर रखता है। ये अंसार और मुहाजिरीन और एहसान के साथ उनके पैरोकारों का दर्जा है। इरशाद बारी ताला है, ये माल उन मुहताज घर बार छोड़ने वालों के लिए है जो अपने घरों और अपने मालों से निकाल बाहर किए गए। वो अल्लाह की तरफ से
कुछ फजल और रजा तलाश करते हैं। उन्होंने अल्लाह के फजल से अपने नेक अमल में सवाब और अल्लाह की रजा दोनों को जमा कर लिया। और इरशाद बारी ताला है, और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रख जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं, उसकी रजा चाहते हैं। और इरशाद बारी ताला है, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद के लिए और मेरी रजा तलाश करने के लिए निकलते हो, चुनांचे आपको भी अमल करते वक्त पहले पहल रज़ाए इलाही और सवाब को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, ताकि आपका शुमार भी उन लोगों में हो जाए जो अहसन तरीके से अंसार और मुहाजिरीन की पैरवी करने वाले हैं। और दूसरा दर्जा ऐसे शख्स का है जो अमल करते वक्त उसके सवाब को तो पेश नजर रखता है, लेकिन बसा औक़ात रज़ाए इलाही को मद्देनजर रखने में गाफिल रहता है, तो वो भी खैर के रास्ते पर ही गामजन है, जिसका उससे उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इरशाद बारी ताला है, और जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए कोशिश की जो उसके लायक कोशिश है, जबकि वो मोमिन हो, तो यही लोग हैं जिनकी कोशिश हमेशा से कदर की हुई है। और तीसरा दर्जा उस शख्स का है जो बाज फर्ज आमाल में कोताही करता है और कुछ हराम कामों का भी इर्तिकाब करता है, जिससे उसके आमाल तो जाय नहीं होते। अगर इसी हालत में फौत हो गया तो अल्लाह के रहम करम पर है, अगर चाहे तो उस पर रहम कर दे, और अगर चाहे तो उसके गुनाहों के मुताबिक उसे अजाब में मुब्तला कर दे। और सबसे आखिरी वो खतरनाक चौथा दर्जा है जो ऐसे शख्स का है जो कभी इबादत करता है और कभी नहीं करता, फिर कभी करता है, फिर कभी छोड़ देता है, उसका मामला उसके खात्मे पर मुनहसिर है। अगर इबादत को छोड़ने की हालत में फौत हुआ तो आग में जाएगा, और अगर इबादत करते हुए फौत हुआ तो अल्लाह ताला उसके जुल्म पर उसका मुहासबा करेगा जो उसने अपनी जान पर किया या किसी दूसरे शख्स पर, और उसका मामला अल्लाह के फजल व अदल पर मुनहसिर होगा। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसका शरीक बनाया जाए, और वो बख्श देगा जो उसके अलावा है जिसे चाहेगा। इन मज़कूरा चारों दर्जात के अलावा वो सभी लोग हमेशा जहन्नम में और आग में जाएंगे जिन्होंने अल्लाह ताला की ना तो इबादत की और ना ही उस पर ईमान लाए, और ना ही क़यामत और नबी पर ईमान लाए। और वो इत्तिक़ादी मुनाफिकीन भी जो इस्लाम को नापसंद करते हैं या इस्लाम के बाज़ उमूर को नापसंद करते हैं। इरशाद बारी ताला है, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अन करीब दलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। और दूसरी जगह फरमाया, बेशक मुनाफिक लोग आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तू हरगिज उनका कोई मददगार न पाएगा। लिहाजा मेरे इस्लामी भाइयों, आप पहले दर्जा वाले लोगों में शामिल हो जाइए और अपने अमल का हदफ अल्लाह की रिजा और सवाब बनाइए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, फिर हमने इस किताब के वारिस अपने वो बंदे बनाए जिन्हें हमने चुन लिया, फिर उनमें से कोई अपने आप पर जुल्म करने वाला है और उनमें से कोई मियाना रो है और उनमें से कोई नेकियों में आगे निकल जाने वाला है। अल्लाह के हुक्म से यही बहुत बड़ा फजल है। हमेशा घी के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे उनमें उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनका लिबास उनमें रेशम का होगा। अल्लाह ताला मेरे लिए और आप सब के लिए कुरान को बरकत का जरिया बनाए। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो यकता व अकेला है, न उसने किसी को जना है और न वो किसी से जना गया, और न ही कोई उसका हमसर है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, वही माबूद बरहक है और वो बेनियाज है। और मैं गवाही देता हूँ हमारे नबी व सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ए अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इबादत गुजारों में से सबसे अफजल हैं, और आपकी आल और किराम पर जो हर मौके पर नेक कामों में सबकत करने वाले थे। हम दो सलात के बाद फराइज व वाजिबात को अंजाम देकर और हराम कामों से दूरी इख्तियार करके अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, क्योंकि जो तकवा इलाही इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके सारे मामलात को आसान कर देगा, उसे तबाह कुन अमाल और हर किस्म के शर से महफूज रखेगा। अल्लाह के बंदो, नेक अमाल को सर अंजाम दो और अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न रखो। बेशक कामयाब शख्स वो है जो अल्लाह ताला की इबादत करता है, नेक अमाल को बजा लाता है और अपने परवरदिगार से मुतालिक हुस्न ज़न रखता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वही अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। और हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ जो वो मेरे मुतालिक रखता है। और वो शख्स खसारे और घाटे में है जो बुरे अमाल का इर्तिकाब करे और नेक अमाल सर अंजाम दिए बगैर अल्लाह ताला से उम्मीद वाबिस्ता किए रखे। इरशाद बारी ताला है, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें उन लोगों से कहेंगे जो ईमान लाए, हमारा इंतजार करो कि हम तुम्हारी रोशनी से कुछ रोशनी हासिल कर लें, कहा जाएगा अपने पीछे लौट जाओ, बस कुछ रोशनी तलाश करो। फिर उनके दरमियान एक दीवार बना दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, उसकी अंदरूनी जानिब उसमें रहमत होगी और उसकी बैरूनी जानिब उसकी तरफ अजाब होगा। वो उन्हें आवाज देंगे, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे, क्यों नहीं, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाला और तुम इंतजार करते रहे और तुमने शक किया और झूठी आरज़ुओं ने तुम्हें धोखा दिया।
دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغاباز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا۔ لہٰذا تم بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو جو کہ بہت زیادہ سخی اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور اہل شرک، کافروں، بے دین ملحدوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا یاب فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے معاملات کو آسان فرما، مسلمانوں سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے ملک اور فوج کی حفاظت فرما۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی معاونت فرما۔ اے اللہ ولی عہد کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کر لو۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔